फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रेलिवेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो शामिल किए गए हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड नेशन हैज़ बिन डिराइव्ड from the Latin word natio or natus, which means the place of burial, the place of birth, the place of death. The correct answer is the place of birth. The word nation has been derived from Latin word natio and natus, which means place of birth. The next question is, Leviathan is the famous work of Montesquieu, Thomas Hobbes, Karl Marx. The correct answer is Thomas Hobbes. Leviathan is the famous work of Thomas Hobbes. The next question is, which is the oldest theory of the origin of the state? रियासत का आगाज़ कैसे हुआ? रियासत के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं। तो उनमें से कौन सी थेरी जो है that is considered as the oldest theory about the origin of the state? यहाँ पे 3 theories के नाम लिखे गए हैं, divine origin of the state, social contract और patriarchal theory. The correct answer is divine origin of the state. रियासत के आगाज़ के बारे में जो 6 मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं उनमें से सबसे कदीम जो थेरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, डेट इज़ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जिसको नज़रिया तख्लीक रब्बानी कहा जाता है। और इस नज़रिए के मुताबिक स्टूडेंट्स कि रियासत जो है वो खुदा की तख्लीक करता है, अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई है। और वो रीज़न ये देते हैं कि चूँकि ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, तो लिहाजा रियासत भी चूँकि इस कायनात का हिस्सा है, इसलिए रियासत भी अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह ताला की तख्लीक है। The next question is, the extreme form of patriotism marked by a feeling of superiority over other countries or nations is called capitalism, nationalism or socialism. The correct answer is nationalism. The extreme form of patriotism marked by a feeling of superiority over other countries or nations is called nationalism. The next question is, who said that political science begins and ends with the study of state? What is political science, or what is the definition of political science? So, who said that political science begins and ends with the study of state? E.M. White or Professor Garner? The correct answer is Professor Garner. Professor Garner said that political science begins and ends with the study of state. The next question is, nationalism remains a potential source of instability and conflict within and between the individuals, states or districts. The correct answer is states. Nationalism remains a potential source of instability and conflict within and between the states. The next question is, who presented the theory of separation of powers? Who presented the theory of separation of powers? There are 3 options: Machiavelli, Jean Bodin and Montesquieu. The correct answer is Montesquieu. Montesquieu presented the theory of separation of powers. Students, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसमें गवर्नमेंट के जो 3 बेसिक शोबे हैं, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। तो इस थ्योरी के मुताबिक इन तीनों शोबों के दरमियान जो हैं जो गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं उनको तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह तकसीम कर दिया जाता है कि हर अदारा जो है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो है, वो अपने अपने दायरे कार में रहकर अपना अपना काम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, de jure means legal, in fact or judiciary? The correct answer is legal. De jure means legal according to the constitution. Next point है, who imposed military martial law on October
12/19/99 इन पाकिस्तान। आपने बताना ये है कि 12 अक्टूबर 1999 को जो है पाकिस्तान में किस शख्स ने मार्शल लॉ लगाया था? आसिफ अली जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक। द करेक्ट आंसर इज परवेज़ मुशर्रफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the word law is derived from the German word lawful, leg or act. आपने बताना ये है the word law is derived from the German word leg. तो जो लॉ का वर्ड है जो वो जर्मन ज़बान के लफ्ज़ लैग से है, LAG, लैग से ड्राइव किया गया है और इसकी मैनी है इवन, यानी हमवार। पानी की ऊपर की सतह जो हमवार होती है, इवन होती है, उस चीज़ को जो है लैग कहा जाता है और उसी से जो है उसको ड्राइव किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो आर कंसिडर्ड एज सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट, मार्क्सिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट। द करेक्ट आंसर इज सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट। दोबारा देखिएगा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो आर कंसिडर्ड एज सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट। तो ये तीनों जो हैं इन्होंने जो कि सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर काम किया है, डेट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ USA कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस जो है, जो कि अमेरिका का लेजिस्लेचर बॉडी है, तो उसका लोअर हाउस जो है, व्हाट इज़ कॉल्ड द लोअर चैम्बर और लोअर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। देयर आर 3 ऑप्शंस: हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउस ऑफ legislation. The correct answer is House of Representatives. The lower chamber of American Congress is called House of Representatives. The next question is a community of persons formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture and our society, which is independent or struggling for independence, is termed as nation or state. The correct answer is nation. दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। द कम्युनिटी ऑफ पर्सनस, यानी ऐसे अफराद का कम्युनिटी, formed on the basis of a combination of shared features such as common language, common history, common ethnicity, common culture। तो कहता है कि लोगों का ऐसा ग्रोह या लोगों का ऐसा तबका या बरादरी जिनके अंदर जो है कॉमन लैंग्वेज पाई जाती हो, उनकी हिस्ट्री कॉमन हो, उनका कल्चर जो है, उनकी लैंग्वेज है कॉमन हो, उनका जो इंटरेस्ट कॉमन हो और वो जो है वो इंडिपेंडेंट हो या अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो है स्ट्रगल कर रही हो, यानी वो आज़ाद हो या आज़ादी के लिए कोशिश कर रही हो। तो ऐसे ग्रोह को जो है या ऐसी कम्युनिटी को जो है पॉलिटिकल साइंस में क्या कहा जाता है? तो ऐसी कम्युनिटी को जो है नेशन कहा जाता है। यानी कौम जो है, नेशन जो होती है, उसका जो फीचर है वो ये फीचर होता है कि वो खुद मुख्तार होती है या अपनी खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। द करेक्ट आंसर इज़ नेशन। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट एज 5040, 5045 and 5050. The correct answer is 5040. प्लेटो जो है, जिसका तल्लक कदीम यूनान के साथ था, उसने अपनी जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट पेश किया था, उसके लिए उसने 5040, 5040 की पॉपुलेशन जो है वो फिक्स कर दी थी और ऐसी रियासत को वो आइडियल स्टेट का नाम देता है। द रिपब्लिक इज़ द फेमस वर्क ऑफ, किताब का नाम है द रिपब्लिक। आपने बताना ये है, द रिपब्लिक इज़ द फेमस वर्क ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। द करेक्ट आंसर इज़ प्लेटो। द रिपब्लिक इज़ द फेमस वर्क ऑफ प्लेटो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो कैबिनेट इज़ द फीचर ऑफ द विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने बताना ये है कि शैडो कैबिनेट की जो टर्म है कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्तेमाल होती है। उसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सेकंड ऑप्शन इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द करेक्ट आंसर इज़ parliamentary form of government. Shadow cabinet is the feature of
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो शेडो कैबिनेट का सिस्टम होता है, जिसको उर्दू में मुतबादल कबीना कहा जाता है, ये कैबिनेट जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। और शेडो कैबिनेट जो है वो बेसिकली जो अपोजिशन होती है, पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन होती है वो अपनी कैबिनेट जो बनाती है उसको शेडो कैबिनेट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियलिस्ट थ्योरी इज आल्सो नोन एज मार्क्सिस्ट थ्योरी, अनार्किस्ट थ्योरी और मेटाफिजिक्स थ्योरी। द करेक्ट आंसर इज मेटाफिजिक्स थ्योरी। इंटरनेशनल रिलेशन की जो दो बेसिक थ्योरीज हैं उसमें एक है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट या रियलिज्म या रियलिस्टिक थ्योरी, और दूसरी है आइडियलिस्टिक थ्योरी या उसको आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। तो जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स थ्योरी। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। The view that the state is a necessary evil is associated with individualist, realist और idealist। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका कहना ये है कि स्टेट इज़ ए नेसेसरी ईवल, यानी रियासत एक लाजमी गुनाह है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जिनके मुताबिक रियासत एक बुराई है या रियासत एक लाजमी गुनाह है। तो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बिलीव करता है? उसमें 3 स्कूल ऑफ थॉट दिए गए हैं। पहला है इंडिविजुअलिस्ट, दूसरा है रियलिस्टिक या रियलिस्ट, और तीसरा है आइडियलिस्ट। द करेक्ट आंसर इज इंडिविजुअलिस्ट। जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, जो इनफरादियत पसंद हैं, उनका कहना यह है कि स्टेट इज़ ए नेसेसरी ईवल, कि रियासत जो है एक लाजमी बुराई है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रियासत के बारे में जो है इंडिविजुअलिस्ट का है। और नेक्स्ट है द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। द करेक्ट आंसर इज इंडिया। पहले चाइना था, अब जो है वो इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकें हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड सी, लैंड मैरीटाइम बेल्ट एंड स्पेस, और लैंड माउंटेन्स एंड रिवर्स। आपने बताना ये है कि रियासत का जो इलाका है वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला ऑप्शन है लैंड एंड सी, यानी उसका जो ज़मीनी इलाका है और उसका जो समुंदर होता है। दूसरा ऑप्शन है लैंड मैरीटाइम बेल्ट एंड स्पेस, यानी ज़मीनी इलाका, मैरीटाइम बेल्ट इलाकाई समुंदर, और स्पेस और उसका फ़ज़ाई इलाका। तो ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स ये दुरुस्त ऑप्शन है। रियासत का जो इलाका है वो उसकी ज़मीन, उसका जो मैरीटाइम बेल्ट है, जो उसका इलाकाई समुंदर होता है, और उसके साथ जो है उसकी जो स्पेस है, यानी एक ख़ास बुलंदी तक जो फ़ज़ाई इलाका होता है वो भी रियासत की मलकियत होता है। जिस तरह कोई दूसरी रियासत जो है वो उसकी जोग्राफ़ी हदूद के अंदर जो है यानी उसकी ज़मीनी इलाके को मुतल्लिका रियासत की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह दुनिया की कोई दूसरी रियासत जो है वो ना तो उसके मैरीटाइम बेल्ट को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती है और ना ही जो है उसके फ़ज़ाई इलाके को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस तरह रियासत की जो सॉवरेनिटी है, रियासत का जो इक़्तिदार आला है उसके ज़मीनी इलाके के ऊपर नाफिज होता है, बिल्कुल इसी तरह जो है जो मैरीटाइम बेल्ट है और जो स्पेस है वहाँ भी रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है उसका निफाज होता है, और मुतल्लिका रियासत की मर्ज़ी के बगैर ना तो उसके ज़मीनी इलाके को, ना उसके मैरीटाइम बेल्ट को, और ना ही उसकी स्पेस को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड दैट स्टेट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज़। रियासत के बारे में किस शख्स ने ये कहा था कि स्टेट इज़ ए एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज़, कि रियासत जो है वो ख़ानदानों का एक वसी इज्तिमा है या ख़ानदानों की एक वसी शक्ल है। एरिस्टोटल, गार्नर और जीन बोदीन। द करेक्ट आंसर इज़ एरिस्टोटल। Aristotle said that state is an expansion of families। आइए देखते हैं कि which is the next question। Dear students, next question है which American magazine published an essay with the title The End of History? New York Times, the Newsweek or National Interest? The correct answer is नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है एक मैगज़ीन का नाम है, और इस मैगज़ीन के अंदर जो है एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1992 के अंदर जो है ये थ्योरी जो थी वो फ्रांसिस फुकुयामा ने जो है सामने लेकर आए थे। और देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा रोट
his book The End of History and the Last Man in 1982, 1992 or 1998? The correct answer is 1992। फ्रांसिस फोकोयामा ने जो है ये जो थ्योरी पेश की थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी इन 1992। जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद जो है, उसके थोड़ी अरसे के बाद जो है फ्रांसिस फोकोयामा, जिनका तल्लुक अमेरिका के साथ है, उन्होंने ये थ्योरी जो थी वो पेश की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोलिस, स्टेटस और सोसाइटी। द करेक्ट आंसर इज स्टेटस, यानी द टर्म स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। एंड देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। A modern state is described as police state, welfare state or power state. The correct answer is welfare state. The modern state is described as welfare state. जदीद रियासत है उसको welfare state है कहा जाता है। The term sovereignty has been derived from the Latin word sovereign, sovereignus or supranus एंड सुप्रीम। आपने बताना ये है द टर्म सॉवरेनिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द विच लेटिन वर्ड। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सॉवरन, सुपेरानस और सुप्रानस एंड सुप्रीम। द करेक्ट आंसर इज सुप्रानस और सुप्रानस। स्पेरानस और सुप्रानस जो दोनों टर्म जो है वो इस्तेमाल होती हैं, आप कोई भी टर्म जो है वो जेन में रख सकते हैं। हु सेड दैट सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी की डेफिनेशन क्या है? तो वो क्या है? द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, रियासत की सबसे आला जो मर्जी होती है, द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, उसको क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहा जाता है। द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट इज आल्सो कॉल्ड सॉवरेनिटी। तो आपने बताना ये है कि ये स्टेटमेंट जो है किस सियासी मुफक्कर की है। उसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्टन, बोदीन और विलोबाय। तो ये जो स्टेटमेंट है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ विलोबाय। तो विलोबाई जो है उसके जो है वो उनकी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वाज फर्स्ट propounded by लास्की, बोदीन और वॉन गेरके। द करेक्ट आंसर इज वॉन गेरके। तो वॉन गेरके जो है, ही वॉज द पर्सन हु प्रेजेंटेड द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ये है कि रियासत का जो इक़्तिदार आला होता है वो काबिल तकसीम होता है। तो जो मोनिस्टिक थ्योरी है उसके मुताबिक इक़्तिदार आला की मालिक सिर्फ रियासत है और रियासत की जो सॉवरेनिटी है उसको तकसीम नहीं किया जा सकता, जबकि प्लूरलिस्टिक थ्योरी के मुताबिक जो है रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है उसको दो या दो से ज़्यादा तंजीमों के दरमियान जो है तकसीम किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड नेशनल असम्बली इज़ द पार्लियामेंट ऑफ तुर्किया, USA और इंडोनेशिया। द करेक्ट आंसर इज़ तुर्किया। तो पहले इसका नाम तुर्की था, अब उसका नाम जो है उन्होंने चेंज कर दिया है, तो ये तुर्किया कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट है सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन वाज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश। आपने बताना ये है कि नाम है सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन, तो ये अमेरिकन था, फ्रेंच था या कि ब्रिटिश था? द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन। सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन वाज ए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और जो सैमुअल हंटिंगटन है इसने भी एक थ्योरी पेश की थी जो कहती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ये थ्योरी जो है ये सैमुअल हंटिंगटन की है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अल-कायदा वाज फाउंडेड बाय उसामा बिन लादेन और हसन नसरुल्लाह। द करेक्ट आंसर इज उसामा बिन लादेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, prior to 9/11 incident, what was the deadliest terrorist attack on USA soil? Oklahoma City bombing 1995 और लॉस एंजलिस टाइम बम्बिंग 1910। तो आपने बताना ये है
कि प्रायर टू 9/11 अमेरिकन के ऊपर जो है 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, तो उससे पहले जो है व्हाट वाज द डेडिएस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए साइड। तो उससे पहले अमेरिका के ऊपर जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो क्या था? ओक्लाहोमा सिटी बम्बिंग 1995 और लॉस एंजलिस टाइम बम्बिंग 1910। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज behind the 2002 Bali night club bombing that killed 202 people। 2002 के अंदर जो है जो बाली नाइट क्लब था वहाँ पे बम ब्लास्ट हुए और उस बम ब्लास्ट के नतीजे में जो है 202 अफराद जो थे वहाँ पे जाँ बहक हो गए थे। तो आपने बताना ये है कि कौन सा टेररिस्ट ग्रुप था जो इस बम ब्लास्ट अटैक के पीछे जो है मुलव्वस था। उसमें था लश्कर ताइबा और जामिया इस्लामिया। तो उसमें दूसरा जो है ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द KGB, दोबारा देखिएगा, KGB ये एक खुफिया तंजीम का नाम है। KGB कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी वाज द मेन सिक्योरिटी एजेंसी for the Soviet Union from 13 March 1994 until December 3, 1991, December 3, 1920। The correct answer is December 3, 1991। तो KGB जो है दूसरा पाकिस्तान की ISI जो है एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया के अंदर रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस तरह KGB जो है ये USSR की एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कि 1954 के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुई थी और 1991 के अंदर जो है जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई और USSR जो है वो उसका कोलैप्स हो गया था, तो उसके बाद ये KGB भी जो है उसका ख़त्मा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द मोटो ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बताना ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इज़ द मोटो ऑफ UNO, NATO और EU। EU मीन्स यूरोपियन यूनियन एंड UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और NATO है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो मोटो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो कौन सा है? जर्मनी, ग्रीस और हंगरी। द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो शामिल मुख्तलिफ रियासतें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ASEAN was established on August 8, 1967, August 8, 1991. The correct answer is ASEAN was established in 1991. NAFTA stands for North African Free Trade Agreement, North African Free Trade Agreement। तो नाफ्टा जो है डेट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है नाफ्टा जो है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगापुर बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965, 1991 और 2001। द करेक्ट आंसर इज 1965। सिंगापुर बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Iran Iraq war lasted for 8 years, 10 years or 12 years। The correct answer is 8 years। Iran Iraq war lasted for 8 years, यानी ईरान और इराक के दरमियान जो जंग हुई थी वो 8 साल तक जो है वो जारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड हिरार्की और अनार्की। तो डेट इज द अनार्की।
The famous diplomat of Pakistan, who also remained the president of International Court of Justice, was Nasrullah Khan or Aga Shahi. The correct answer is Nasrullah Khan. The famous diplomat of Pakistan, who also remained the president of International Court of Justice, he was the Nasrullah Khan. तो आइए देखते हैं कि which is the next question. Imperialism, the highest stage of capitalism, was written by Hegel, Lenin or Marx. The correct answer is Lenin. जी, the correct answer is Lenin. Lenin जो है उसकी किताब का नाम है, ये यहाँ पे इशू हुआ एक, जी, लेनिन जो है उसकी किताब का नाम है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, वाज रिटन बाय लेनिन. आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 वाज बिटवीन यूएसए, यूएसएसआर एंड ईरान, यूएसए, यूएसएसआर एंड क्यूबा. द करेक्ट आंसर इज यूएसए, यूएसएसआर एंड क्यूबा. इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहा जाता है. और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था कि यूएसएसआर जो है जिसका इत्तेहादी था क्यूबा जो है, तो यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर जो है अपने जो मिसाइल थे वो नस्ब कर दिए थे और उनका जो रुख था वो यूएसए की तरफ था, जिससे दुनिया भर को जो है उनकी अमन को जो है एक बहुत बड़ी थ्रेट हो गई थी. तो इस वाक़े को जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है, जो कि 1962 के अंदर जो है रूनुमा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द मॉडल दैट डील्स विद द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन वेयर ऑल द राइवल्स are to be benefited in different degrees is termed as zero sum situation or non-zero sum situation. The correct answer is zero sum situation. The model, what is the model that deals with the conflict situation where all the rivals are to be benefited in different degrees is termed as ज़ीरो सम सिचुएशन. यानी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है अगर तमाम जो फ्रीक उसके हैं, तमाम जो पार्टीज़ हैं वो किसी न किसी हवाले से बेनिफिशरी हो जाती हैं, उनको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को जो है या ऐसे मॉडल को जो है ज़ीरो सम सिचुएशन कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. हु कंसीडर्ड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स. द करेक्ट आंसर इज थॉमस हॉब्स. Who considered the international politics as a war of all against all. तो इसमें दुरुस्त जवाब है थॉमस हॉब्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मैकियावेली नोटेड दैट द फर्स्ट वे टू विन ए स्टेट इज टू बी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी और वार. द करेक्ट आंसर इज वार. दोबारा देखिएगा. मैकियावेली नोटेड दैट द फर्स्ट वे टू विन ए स्टेट इज टू बी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वार. तो मैकियावेली क्या कहते हैं, द फर्स्ट वे टू विन ए स्टेट, किसी भी रियासत के ऊपर अगर आपने फतह हासिल करनी है, गलबा पाना है, तो आपको कौन से स्किल के अंदर जो है वो माहिर होना चाहिए. तो उसमें है यानी जंग के अंदर जो है वो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए. इस तरह आप दूसरी रियासत के ऊपर गालिब आ सकते हैं. हु सेड दैट डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस एंड फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस. हेनरी ट्रूमैन, हेनरी किसिंजर, जॉन एफ कैनेडी. दोबारा देखिएगा, बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट है. हु सेड दैट डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं वो हमें डिफीट कर सकती हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमें किल कर सकती है, वो हमें मार सकती है. तो किसका ये कहना है? हेनरी ट्रूमैन, हेनरी किसिंजर और जॉन एफ कैनेडी. ये जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो है उसका कहना ये है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस एंड फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस. आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है. इसमें ऐसे MCQs शामिल किए गए थे जिनका तल्लुक पॉलिटिकल साइंस के साथ था और कुछ इसमें क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल. अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.